मेरे विश्व गुरु भारत के मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और जो हम उम्र उनको आई लव यू ऑल। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि देश में क्या चल रहा है। तो कोई कहेंगे कि देश में फॉग चल रहा है, कोई कहेंगे ये चल रहा है, कोई कहेंगे वो चल रहा है। बॉस, देश में ना फॉग चल रहा है ना फुवारे चल रहे हैं। हमारे देश के और गंदगी के बीच जंग चल रही है। भारत और गंदगी के बीच छिड़ चुकी है जंग। तो बताओ आप हो किसके संग? आज तक हम लोग ये सुनते आए हैं कि प्लास्टिक अभिशाप है, प्लास्टिक ये है, प्लास्टिक वो है। लेकिन साथ ही हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस अभिशाप को एक मिरेकल में तब्दील कर देते हैं। तो आज मैं जिनसे आपको मिलाऊंगा वो वही शख्सियत है जो इस अभिशाप नामी प्लास्टिक को एक मिरेकल में तब्दील कर देते हैं। उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ही होता है लेकिन महत्वपूर्ण होता है। जो प्लास्टिक आप लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हो, चाहे वो पानी की बोतल हो, चाहे दूध की बोतल हो, आप लोग क्या करते हो, उसको पैक कर देते हो और जब सफाई कर्मी आते हैं तो डाल देते हो। लेकिन उसके बाद उसका क्या होता है उसका हमें पता नहीं होता। लेकिन आज मैं जिनसे मिलाऊंगा वो बताएंगे कि हम जब प्लास्टिक उन्हें देंगे जो हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उसका क्या होता है, क्या करते हैं वो लोग। तो आइए मैं मिलाता हूँ उन सबसे जिनका नाम है मीता बैनर्जी। मैम, नाइस मीटिंग यू और आई एम सो ग्लैड दैट आई एम एसोसिएटेड विद यू नाउ। ओके, व्हाट एग्जैक्टली you people are doing We to are part of give a society? Pune Plastic Warriors, and our own घर का household waste plastic we are keeping separate and we are giving to an organization called Rudra Environmental Solutions, started by Dr. Medha Tarpatrikar, and they recycle all this plastic. So we just keep it in our house and they come and collect it on a weekly basis. And they just take it to their factory at Jejuri and they recycle it into a polyfuel. So that takes care, finishes off all the plastic and that much. Part of this Plastic Warriors group in Pune. And we give all our waste plastic for recycling. And from today, Bharat Rath has also joined our team of Plastic Warriors. So which means, see, now once this is emptied out, this packet is going to be thrown away. This packet is going to be thrown away. All these packets you see everywhere, here in the store, even at home, all these packets are collected. We just collect it in a bigger packet and we give it for recycling and it turns into a fuel, polyfuel. So that means that much plastic is taken care of. It doesn't go into the garbage heaps. It doesn't cause pollution and the world is so much cleaner. Our surroundings are cleaner. So we've now started this. See, plastic is a miracle thing. It helps us in packaging. It's so good. But what happens once you've eaten this? You're throwing it away. Imagine all this. Everything is plastic. Everything is plastic. Now, if each of us takes care to segregate it right in the beginning, that is called segregation at source, and we take all these plastic packets and we keep it in a bigger packet and if we give it for recycling, that's it. Huh? So let us all do it. Now Bharat Rath has joined. I wish you would join also, and all these people have joined. Society, from the one of the society. So almost every Indian's responsibility is this to make our country, reduce the plastic pollution in our country. Yeah. So let us become a waste plastic warrior from today and do segregation at source. सो गाइस, प्लास्टिक हमारे ज़िंदगी के अंदर ऐसे घुस चुका है कि दिखाता हूँ। प्लास्टिक, उसके अंदर प्लास्टिक, उसके अंदर कुछ स्नैक्स, प्लास्टिक, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्लास्टिक, फिर प्लास्टिक, उसके अंदर चॉकलेट, ब्रेड, उसके ऊपर प्लास्टिक, अंडा, उसके ऊपर भी प्लास्टिक, शैम्पू में प्लास्टिक, धनिया में प्लास्टिक, हल्दी में प्लास्टिक, दूध में प्लास्टिक, हाउस क्लीनिंग आइटम से प्लास्टिक और यहाँ तक कि कलर में भी प्लास्टिक, बिस्किट में प्लास्टिक, सब में प्लास्टिक। तो प्लास्टिक तो हमारी ज़िंदगी में है, यहाँ तक कि उस चावल के थैले में भी प्लास्टिक।
लेकिन अब इस प्लास्टिक से हमें बचाएगा कौन और इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? क्या आप जानते हैं प्रति वर्ष, जी हाँ, प्रति वर्ष 5.6 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ, 5.6 मिलियन और 26,000 मिलियन पर डे। से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि रोड पे आओ, प्लास्टिक बिनो और फिर करो। आप वो चीज़ों को आप एक जगह एकत्रित करिए और फिर हमें दे दीजिए, हम उसको सही जगह पे पहुंचाएं। तो गाइस, आप लोगों ने सुना कि इस खतरनाक प्लास्टिक से भी मिरेकल कैसे किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ खासकर पुणे वालों से, क्योंकि हम लोग अभी पुणे में हैं, रुद्रा फाउंडेशन पुणे में है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप पुणे वाले लोग भी अपने डेली लाइफ में यूज़ होने वाले प्लास्टिक को अच्छे से सेग्रीगेट करेंगे और हमें दे देंगे, ताकि इस प्लास्टिक को, हमारी सोसाइटी को हार्म करने से रोका जा सके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं आगे जो राइट टू यूनाइट सीरीज लेके आने वाला हूँ उसके साथ बने रहिए, वो बहुत ही अच्छी सीरीज होगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जो मन में आए वही कीजिए।